East or West, noodles are the best. Hi guys, I'm Priyanka और आज मैं करने वाली हूँ 24 hours challenge जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम सिर्फ और सिर्फ मेरे favorite noodles. So come on, let's get started. It's breakfast time guys और breakfast के लिए मैं आ गई हूँ थाईलैंड की बैंकॉक सिटी में one of my favorite city. आज मैं आपको एक ऐसे फूड ब्लॉगर से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने फूड ब्लॉगिंग का जो है कॉन्सेप्ट क्रिएट करा था, स्टार्ट करा था YouTube के अंदर. Who is one of the pioneers of food blogging and he's none other than Mark Wee. So come, let's meet him. Hello Hi, Mark, Priyanka. how are you? Hey, welcome to Bangkok. Thank you so much. So he's Mark Wee. इनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. Everybody knows you. Like in India, you're so famous, and the way he has covered India, it's mind blowing. Like after seeing your videos for so many years, like 10 years, I have started like what I thought I will also create such kind of videos the way you created it, like showing the entire city in one video, and you're like, woo! I love India. I love India too. What is your favorite city in India? Tell me. I love the energy of Calcutta. Oh, okay. But I especially love South Indian food. But I love North Indian food too. I think every city has something unique to offer. Unique. What are we eating in breakfast today? Tell me. So we're gonna have pad thai. Pad Thai, the national dish of Thailand. Yeah, probably one of the most famous dishes in all of Thailand. And Yes. he has suggested this place. This place is Your Pad Yup, Thai. Pad thai. And he's cooking it right here on the Okay, outside, he's so we can watch him as he makes it. Okay, there, It's that really side. cool. And so Yacht should be his name. Okay. So Oh, this is- okay. Your is his name. Sawadee krab. Swadika. How are you? Me call. Should we order right now? Yes, we Okay. can. So should we get two plates of Two, call yeah, call definitely. Mang Sawi Lat ได้ไหมครับลุง Mang Sawi Lat Pad Thai Mang Sawi Lat 2 จานครับ Oh, a good word for you to know in Thai. Mang Sawi Lat. Mang Soya. That means vegetarian. Oh, okay. That's a good word to know. That's a good word to know. There's two ways. One is J. Okay. If you've heard of J, Yes, that yes. means vegan. Okay. But it's also religious, so it also includes no garlic. But if Mang Sawi Lat is vegetarian, and I think you can still have eggs. Just look guys, यहाँ पे आ गए राइस नूडल मस्त टोफू के अंदर सौते कर रहे हैं ये. Yeah. And this is absolutely cool. Oh my god. These rice noodles, they are not sticking to each other. This is so Yeah. good. Otherwise, every time it sticks. That's actually something that takes quite a skill to make pad thai Yeah, because that's really. sometimes I've tried to make it and it just turns to a mushy Ah, ball. Yeah. It becomes like a rice ball. Yeah. If you don't know how to use the heat right, Yeah, I it know. will definitely mush up. Chives go in. So and what's this is this? the tamarind sauce. Okay, tamarind sauce. That's- Okay, guys, इसके अंदर इमली वाली चटनी भी जाती है. Yeah, sweet and sour taste. Yeah, And then yeah. peanuts. Peanut for Yep. the crunch. Okay, now in Okay, goes so we some got egg, eggs. Yes, I eat eggs, of course. Yes. Oh, that's smelling good. Oh yeah, maybe he'll do the kind of fold it into the egg. Oh yeah. So guys, my pad thai noodles are here and just look at this. This is so beautifully done. बहुत ही बढ़िया तरीके से है. बस egg इसके अंदर है. Otherwise, this is vegetarian noodles. And if you look, इसके ऊपर bean sprouts भी इन्होंने sprinkle करे हुए हैं. Okay, so we should taste it first, but then Okay. definitely we'll want to season after we taste it. Okay, Okay, definitely. hot and fresh. I think for me it's perfectly done. You eat spicy, so you Oh, need yeah. anything spicy? Oh, yeah. Okay. This definitely needs some chili. Okay. Nice. It has a nice sourness to it from that tamarind. This Sweet is chili, sourness. great. And then this is also essential seasoning for Okay. So pad these thai. are bean sprouts. So yeah, usually you can add some bean sprouts, you can add some chives, you can squeeze it with lime juice, Okay, I'll have. and then I definitely go for. So guys, for chili. नींबू तो मेरा favorite है तो मैं तो डालूंगी इसके अंदर. Alright. I go for And you chili. love spicy food. Oh, just look at the quantity Oh yeah. of chili. Gotta my go God. for some chili. Now I can imagine how Gotta go you for eat a- those spicy food. Yes. You know? Oh, addicted. Go for a squeeze of lime juice. You don't need that much spicy, Very spicy. Very less spicy. Okay. Because then it's like boom. but it tastes so good though. Yeah. These noodles are so good, guys. कोई भी चिपके हुए noodles नहीं है. It has all the flavors. Yeah. The sweet, sour, spicy, salty. And it's healthy also. Like you are being doing food vlogging for past 10 to 15 years now. Yep. You look exactly same. You eat the entire food, Really? but you haven't put on a single pound or kg. Like when I started, I have put on 20 kgs of weight. So what's the For food secret? vlogging. Yes. So what's the secret? You have to tell me. I don't typically eat desserts or sweets. So Oh. that's one thing. Okay. And then the other thing is I really do like to exercise. Okay. And mine is like I jump onto desserts and like I eat dessert like a crazy baby. That's okay too. Whenever I eat at in South India or
eat in India, and you have a banana leaf, Uh-huh. you get a pile of rice. Yeah. I'm always like, okay, I'm just gonna eat this and then I'll stop. I'm not. Acha. And then I always end up adding more rice More because they're rice. so good. I'm happy to see you that you have, you know, that love for Indian food. Oh. Generally, people coming Oh, from yeah, for outside, sure. they're like, they find it very spicy, but you eat spice so well. So like you can handle all the Indian spices. Definitely. It was really good to meet you, Ma. Thank you. After Very cool to seeing meet you you for as so well. many years. Thank you so much. Yes, yes. इट्स लंच टाइम गाइस और ब्रेकफास्ट में मार्क क्वींस के साथ ब्रेकफास्ट करने में वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आया और लंच करने के लिए मैं आ गई यूनियन मॉल जहाँ पे मिलते हैं सिर्फ नूडल्स ही नूडल्स। सो गाइस नूडल्स खाने के लिए अब मैं आ गई हूँ गुड नूडल्स के यहाँ जहाँ पे चारों तरफ नज़र उठा के अगर आप देखेंगे तो देखेंगे सिर्फ नूडल्स ही नूडल्स। इतने सारे नूडल्स है, यहाँ से देखना चालू तो करो गाइस। ये ऑरेंज वॉल बनाई है जिसके अंदर इतने सारे नूडल्स हैं कि मतलब अब मेरे लिए टास्क ये है कि इन नॉन वेज नूडल के मेलों में से मुझे ढूंढ के निकालने हैं गाइस वेजिटेरियन नूडल। पिंक कलर के नूडल्स तो बहुत ही सुंदर से मुझे लग रहे हैं बट आई थिंक दीज आर नॉट वेजिटेरियन नूडल्स। इसमें ओहो चिकन, ये 2x स्पाइसी नूडल, ये भी चिकन है। ये सब चिकन ही चिकन है, यहाँ तो ढूंढने में बड़ा सारा मेहनत होने वाली है। और यहाँ पे क्या है, ये नूडल चिकन, सब चिकन 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 है, श्रिम्प। ये वेज है क्या? वेज। ओह यस यस यस। ओह थैंक गॉड, आपको थैंक यू, आपने पहला मेरे लिए वेज नूडल जो है ढूंढ निकाला है। ये कुछ वेज है ये मशरूम। अरे यस 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 गाइस, ये देखिए इस डब्बे को देखिए, ये मशरूम वेजिटेरियन है। कितना बड़ा बॉक्स है गाइस और सिर्फ 45 बात का ही है। लवली। और देखिए इतने बड़े बड़े नूडल्स के डब्बे भी हैं यार। मुझे लगता है जिसको नूडल पार्टी अपने घर में करनी है ना, वो इतने बड़े डब्बे के अंदर नूडल पार्टी कर सकता है। ये तो मुझे कुछ कोरियन नूडल जैसे दिख रहे हैं। ये मुझे लगता है मैंने ट्राई करा था वेजिटेरियन वर्जन इसका अपने स्पाइसी नूडल चैलेंज के अंदर। एंड ये वेज दिख रहा है मुझे। ये कौन सा नूडल है? ये है चैपेगेटी गाइस। स्पैगेटी तो मैंने अभी खाई थी, अब मुझे लगता है चैपेगेटी खानी पड़ेगी। अब देखिए ये नूडल्स को ना ये बना के नहीं देंगे ना, आपको इन नूडल्स को घर ले जाके बनाना है। ये नूडल्स आपको यहीं शॉप पे खुद ही प्रिपेयर करने हैं। लगा ना झटका? मुझे भी ऐसे ही झटका लगा। तो चलो अब इन नूडल्स के ऊपर हमें टॉपिंग्स क्या क्या डालनी है हम वो पहले अरेंज करते हैं। यहाँ पे सारी देखिए टॉपिंग्स लगी हुई है, वेज नॉन वेज सब कुछ लगा हुआ है। ये ले लेती हूँ मैं, मेरे ख्याल से तो ये मैं 2 ले लेती हूँ क्योंकि मैंने 3 नूडल्स लिए हैं। ये इनकी कैबेज हो गई गाइस, ये भी 2 ले लेती हूँ फिर। अब आपको जाना है सीधे इधर बिलिंग करने के लिए। सो गाइस ये सारा का सारा माल मलीदा आया है 226 भाट का। सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी नूडल्स की ट्रे लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने सारे नूडल्स जो है रिस्पेक्टिव बॉक्सेस के अंदर निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पे लगी हुई हैं बहुत सारी नूडल बनाने की मशीन। तो अलग अलग नूडल्स अलग अलग मशीन में जाएंगे गाइस। अब है सबसे बड़ा टास्क गाइस। एक्चुअली मैं भूल गई गाइस कौन सा किस में जाने वाला था। अरे इसमें से तो पानी निकल आया गाइस, इसमें से क्यों नहीं निकला? मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है। अपने तो इंडिया के अंदर वो भैया लोग और शेफ हमको नूडल बना के दे देते थे और घर पे गैस के ऊपर हम नूडल बना लेते थे। यहाँ पे मशीनों को समझना इतना मुश्किल है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया मेरे लिए। सो गाइस यहाँ पे आ गए बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत के साथ नूडल पक्के। तो देखिए ये तीनों नूडल्स कितने बेहतरीन लग रहा है। इसके अंदर जो मैंने टॉपिंग्स डाली है ना वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ दीज नूडल्स। ये देखिए बिल्कुल भी चिपके नहीं है, बढ़िया एकदम खिले अलग नूडल्स हैं। और ये दूसरे नूडल्स आ गए, ये मशरूम वाले नूडल्स हैं, पानी ज़्यादा रह गया। एंड गाइस ये जो ब्लैक कलर के आप नूडल्स दिख रहे हैं ये है एकदम स्पाइसी नूडल और ये है ब्लैक बीन वाले नूडल। अभी सबसे पहले हम खाएंगे ये अपने नॉर्मल वाले वेजिटेरियन नूडल्स, एकदम गर्मा गर्म है गाइस। नूडल्स तो अच्छे हैं, जरा सूप पी के देखो कि क्या क्या मसाले डाले थे इसके अंदर। एक्चुअली ये वाले बड़े अच्छे हैं यार, ये हल्के से सटल से हैं, बिल्कुल भी तीखे नहीं है। मुझे इसको खा के ना ऐसे दिखने में तो देखो गाइस, दिखने में एकदम मैगी जैसे आपको दिखेंगे बट स्वाद जो है इनका मैगी जैसा नहीं है। ये देखो मैगी मसाला ले आती है। अरे यार सच में यार इसके अंदर बहुत हल्का सा मसाले का स्वाद है, ज़्यादा स्वाद नहीं है। अभी मैं ये थोड़ा सा मशरूम वाला ट्राई करती हूँ, पहले सूप ट्राई करती हूँ मशरूम का कि कैसा है। ओहो हो, ये तो एकदम हिट कर गया मेरे को। मतलब इसके अंदर ना मशरूम का बहुत बढ़िया अर्दी फ्लेवर आ रहा है।
इसका जो एक्चुअली ब्रॉथ है ना वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है बिकॉज दिस इज़ मोर फ्लेवरफुल। जिनको मशरूम पसंद है उनको ऑब्वियसली ये मशरूम वाले नूडल्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे बिकॉज दिस हैज़ हिंट ऑफ गार्लिक ऑल्सो, और इसके अंदर हल्का सा जो है मुझे लगता है सोया का टिन भी आ रहा है। ये नूडल्स थोड़े से अलग हैं, हल्के से फ्लैट हैं एंड राउंडेड है, बशर्ते ये अगर आप नूडल्स देखोगे तो एकदम मैगी जैसे। और अब बारी है एकदम तीखे तीखे ये ब्राउन वाले नूडल्स खाने की। ओहो हो, ये तो एकदम लिपटे हैं अपनी सॉस के अंदर। ये बहुत स्पाइसी है यार, जबकि मैंने तो इनका चिली ऑयल या जो भी ऑयल दिया था वो डाला ही नहीं था। वो बाप रे, वो डाल देती तो मैं तो मर ही जाती यहाँ पे। इट्स स्नैक टाइम गाइस, और स्नैक्स खाने के लिए गाइस मैं आ गई एमस्फीयर मॉल में। और इतना कलरफुल सा मॉल है, अगर आप ऊपर नजर उठा के देखोगे तो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी कलरफुल सी पेंटिंग्स बनी है जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बारिश बहुत है इसलिए हम सीधे अंदर आ गए और यहाँ पे देखती हूँ कि किस तरीके के नूडल्स मुझे यहाँ खाने को मिलते हैं। गाइस ये मॉल बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज है। चलते चलते मैं इनके फूड कोर्ट में आ गई हूँ। देखो क्या दिखा यहाँ पे, देखिए मस्त मस्त वाले गोल गप्पे, और अगर इस साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे थाई टी एंड की कॉफीज मिल जाएंगी। एंड गाइस इस मॉल में ना आपको बहुत सारी क्यूजीन्स खाने को मिल जाएंगे। ये देखो गाइस मैं कोरियन क्यूजीन पे आ गई हूँ। यहाँ पे मिल रहा है गिम्बाप, मतलब आपको इंडियन मिलेगा, कोरियन मिलेगा, जापानीज मिलेगा, थाई मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई डिमसम सेंटर के अंदर जहाँ पे मिल रहा है बहुत तरीके के डिमसम। एंड जस्ट लुक एट दिस, इतना बड़ा बर्गर लगा है गाइस, को तो देखकर मैं ही हैरान हो गई। इतनी सारी चीजें इस बर्गर के अंदर गई हैं। बट मुझे आज बर्गर नहीं, मुझे तो आज नूडल खाना है क्योंकि आज है मेरा नूडल चैलेंज। तो चलो चल के देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्यूजीन के मैं नूडल्स खाऊंगी। तो आ जाओ। सो गाइस मैंने अपने लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग से नूडल्स ढूंढ लिए हैं जो कि हैं थोड़े थोड़े क्या पूरे के पूरे इटालियन नूडल्स। और यहाँ पे मुझे खानी पड़ेगी स्पेगेटी एंड मैं आ गई पास्ता लोनी में जहाँ पे मैं खाऊंगी पास्ता। एंड गाइस जस्ट लुक, यहाँ पे इतने तरीके के पास्ता अवेलेबल हैं गाइस। ये देखिए ये फ्लैट नूडल पास्ता है, ये ब्लैक कलर का पास्ता, इसको चाकोल से ब्लैक नहीं करा गया, इसके अंदर स्क्विडिंग करी गई है गाइस। एंड यहाँ पे देखो ये पता नहीं कौन सा पास्ता है, ये मुझे नहीं पता, ये फ्यूसली पास्ता है और ये है स्पेगेटी पास्ता जो मुझे खाना है। तो चलिए अभी यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मेन्यू लग चुका है कि मैं कौन सी सॉस में कौन सा पास्ता खाऊं। स्वादिका, हाउ आर यू? Good. So any vegetarian pasta? Okay, I'll choose this pasta and then these are the sauces. Sauces, you can have Tomato pomodoro. Yeah. Okay. And then gorgonzola is blue cheese sauce. And the pesto. Pesto, yeah. Okay, so I will go with this pomodoro, tomato. So it will red in color. Okay. So ओके यहाँ पे लाइव पास्ता बनाते हैं, शीट्स लेके कट हो रही है एंड पूरा का पूरा लाइव यहाँ पे पास्ता के नूडल्स बनाए चले जाते हैं ये लोग। यहाँ पे पास्ता शीट्स को देखे कैसे मशीन के अंदर इन्होंने डाला है और अब इसके नूडल्स जो हैं ओ हो कैसे फ्लैट पास्ता निकल के आ गए हैं। एंड यहाँ पे फ्रेश शीट्स बन गई हैं और आप जैसे ही ऑर्डर देंगे फ्रेश गर्मा गर्म पास्ता बन के आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आगे मेरे इटालियन नूडल्स जो मुझे बड़े पूरे के पूरे 290 बात का। सो जस्ट हैव अ लुक गाइस, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुली दिस इज डन। एंड ये स्पेगेटी नूडल्स है, पोमोडोरो सॉस के अंदर है, पोमोडोरो इज टमेटो बेस्ड सॉस। एंड यहाँ पे गाइस देखिए इसको बेसिल से भी गार्निश करा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये टमेटोज पूरे हैंड क्रश्ड हैं, इसकी प्यूरे नहीं बनाई गई है। एंड ये बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर से कि आई एम जस्ट अबाउट टू डिग इन। एंड जस्ट लुक एट दी स्पेगेटी पास्ता, ये कितने फ्रेश हैं, कितने बढ़िया हैं, कितने जूसी हैं। ओह माय गॉड, आफ्टर एजेस, सीरियसली मैं बोलूँ आफ्टर एजेस आई एम ट्राइंग सच अ गुड पास्ता और आई कैन से नूडल पास्ता। इन नूडल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, ये देखिए इसको एटलांटे करके छोड़ा गया है, इसके अंदर एक बाइट साइज है, थोड़ी सी चूईनेस है, इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा पकाया नहीं गया, इसके अंदर एक टेक्सचर है और इनका जो पोमोडोरो सॉस है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो इन नूडल्स को ना बहुत बेसिक तरीके से बनाया गया। इनको जो हैंड क्रश टमेटोज के अंदर सॉटे करा गया है विद लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड गार्लिक। मतलब इसका जो टेस्ट है ना बहुत रॉ है, बहुत रस्टिक है एंड इट इज़ रियली रियली डिलिशियस। इट्स डिनर टाइम गाइस और डिनर करने के लिए मैं आ गई हूँ बैंकॉक के प्रथुनहाम्बान एरिया में, जिसको आप कोरियन टाउन भी बोल सकते हैं। ये चाइना टाउन से थोड़ी ही दूरी पे जो है लोकेटेड और यहाँ पे आपको बहुत सारा कोरियन फूड खाने को मिल जाएगा। और जब बात हो नूडल चैलेंज की तो कोरिया को हम कैसे भूल सकते हैं गाइस। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आई हूँ लेक हुआ नूडल शॉप पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है बैंकॉक की। और इनको
यूजर्स चॉइस अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो चले पता करते हैं कि यहाँ पे हम वेजिटेरियन नूडल्स बनवा भी पाएंगे या नहीं सकम। सो देखा, कैन यू मेक स्टर फ्राई नूडल्स? Stir fry noodles, no meat, no fish, no pork. Okay, spicy crispy noodles, pork no have. Only spicy crispy noodles. Vegetables like carrot, egg, no egg. Okay, then this spicy crispy noodles. So guys, बड़ी मुश्किलों से मैं इनको समझा पाई क्योंकि ना तो इनको इंग्लिश आती थी और हिंदी तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं आती। बट वो सच अ टास्क टू मेक हर अंडरस्टैंड कि मुझे वेजिटेरियन वर्जन ऑफ नूडल्स चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मांगे इनसे स्टर फ्राई नूडल्स और देखो मुझे क्या मिला है गाइस। ये नूडल्स ना तो स्टर फ्राइड है ना ही बॉइल्ड है। ये नूडल्स अमेरिकन चॉप्सी की तरह गाइस एकदम फ्राइड नूडल्स हैं। जस्ट लुक, ये पूरे के पूरे फ्राई है, डीप फ्राइड नूडल्स हैं। एंड ये मुझे बड़े पूरे 60 भाट के। अब ये एक्चुअली में है कैसे, तो चलो लेट्स डू द टेस्टिंग। ओह मैं हाथ से ही खा लेती हूँ गाइस, मुझे ऐसा लगता है चम्मच में तो आएंगे नहीं। हाँ गाइस, ये फ्राइड नूडल्स तो अच्छे हो। इसके अंदर ना मुझे हल्का हल्का सा पता नहीं क्यों बहुत ही खट्टा मीठा सा स्वाद आ रहा है। थोड़ी देर के बाद एक हल्की सी किक आती है स्पाइस की। बहुत अलग तरीके के इनके मसाले होंगे। दिस इज रियली डिफरेंट। और ऊपर इन्होंने ना फ्राइड गार्लिक भी डाला है गाइस। ये फ्राइड गार्लिक के साथ ना एकदम भुने हुए पीनट्स भी हैं। इसकी जो सॉस है ना, ओह माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली डिलीशियस। इट्स डिजर्ट टाइम गाइस। अब यहाँ पे बैंकॉक के अंदर वो नूडल वाली डिजर्ट ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली। बिकॉज इफ़ यू लुक यहाँ के डिजर्ट देखिए, यहाँ पे छोटे पैनकेक जैसे बना देते हैं। इसके अंदर ये कोकोनट एंड कैरेट भी डालते हैं। अगर आप देखो कैसे लाइक छोटे चीले के जैसे जो है इनके पैनकेक्स बन रहे हैं। और अगर आप इस साइड आओगे तो यहाँ पे वो क्रेप वाले पैनकेक्स अवेलेबल है। ये देखो, ये है थाई डिजर्ट गाइस। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो जेलीज वेलीज है ना, ये थाई डिजर्ट के अंदर आती हैं। एंड यहाँ पे हाय बड़ी अतरंगी सी जेलीज मुझे दिख रही हैं। क्या बात है। हेलो स्वादिका, व्हाट इज दिस? दिस लुक्स लाइक नूडल। व्हाट इज दिस? नूडल। श्योर। ओके गाइस, ये मुझे लगता है मैदे के या पोटैटो स्टार्च के नूडल्स हैं। दिस एंड ऐड दिस। या देखिए गाइस, यहाँ पे ये बना रही हैं फ्रेश मेरे सामने मेरा डिजर्ट। एंड ये देखिए इतनी सारी बर्फ थी। ये कहीं गोला तो नहीं है बर्फ का? उसमें मुझे कलरफुल सी डिजर्ट दिखी तो मैंने सोचा बनवा देती हूँ। पूरा कटोरा तो इन्होंने जो है बर्फ से भर दिया है। अरे यार, ये तो सिर्फ सारी की सारी 40 बाट के अंदर मुझे बर्फ दे दी इन्होंने। ये देखिए अब रंगीन जेलीज इनकी जाएंगी इसके अंदर। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। ओके, लवली। एंड यहाँ पे देखिए इनका कुछ सिरप जाएगा मीठा। अच्छा, ये इनकी रबड़ी है गाइस, ये कोकोनट मिल्क है मुझे ऐसा लगता है। सो गाइस, ये आ गया मेरा 40 भात का थाई फालूदा विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ कोकोनट मिल्क। ये देखो क्या बढ़िया वैसे तो इन्होंने सजाया है, बर्फ इतनी सारी डाल दी। ये जो नूडल्स आप देख रहे हो ना, ये पहले मुझे नूडल्स नहीं लग रहे थे, ये मोटे पोटैटो स्टार्च के नूडल्स हैं। जब मैंने इनसे पता करा, ये है तो देखो एकदम पानीदार इनका दूध, बट इन्होंने जो ऊपर सिरप डाला ना मीठा, वो इसको ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना देता है। ये देखिएगा, ये तो पूरी बर्फ़ की सिल्ली यहाँ पे तैयार हो चुकी है जिसके ऊपर मेरे नूडल्स सजे हुए दिख रहे हैं। आज के चैलेंज को करते हैं हम यही खत्म। अगर ये नूडल चैलेंज आपको बैंकॉक वाला अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि आज का चैलेंज करने में तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मैं मिली अपने आइडल मार्क क्वीन से एंड इट वाज रियली फैंटास्टिक टू मीट हिम। तो चलिए अब मिलूंगी किसी और चैलेंज में, तब तक के लिए बाय।